आप रोज ढेरों एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स आपके पास बहुत आते हैं। इनके साथ क्या आपको लगता है कि जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो फंड रेजिंग की होती है, क्योंकि वो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ज्यादातर आपकी मदद लेने आते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी जो चीज है, एक डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर जिसे शुरू किया, एंटरप्रेन्योर इज नॉट एन इन्वेंटर, नीदर इज अ फॉलोअर, इज समबडी इन बिटवीन। ओके, वो क्या करता है, वो एक आइडिया को कमोडिटाइज करता है और उसके अंदर एक स्केल लाता है। वो स्केल के अंदर आई थिंक जैसे हमने शुरू किया तो हम बात कर रहे थे कि भाई किस तरह की कैपिटल की जरूरत है एंड व्हाट लेवल ऑफ ग्रोथ that idea can take is what decides what capital, what way we should acquire that capital. I agree with Mr. Agarwal that shuru mein startup is not about raising capital. It's all about that idea and the opportunity it creates for the future growth. And I think rest everything follows. So I don't think, just to answer your question, most of the people I meet, they are not looking at capital as a hurdle to start a business. Okay. जीएस बोला साहब, आपको लगता है कि पैसा एक ऐसी चीज है जिसको लिए कि जब आप बिजनेस स्पेशली शुरू करने वाले होते हैं उस वक्त बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस रखने की जरूरत होती है कि किससे पैसा ले रहे हैं, कैसा पैसा है और उनके टर्म्स कंडीशंस क्या होते हैं। ये सब बातें ऐसी होती है जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को डिमोरलाइज करने के लिए अपने आप में काफी होती हैं। So, ऐसे प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए? First of all, if you're a true entrepreneur, there's nothing that is going to demoralize you. Yes. Now, second, coming to your point, कि आपको इसकी प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि आप जो आइडिया है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और विजन क्या है, व्हाट इज द मार्केट साइज फॉर दैट आइडिया। बेस्ड ऑन दैट, व्हेन यू रेज कैपिटल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अंडर व्हाट कंडीशंस यू आर रेजिंग द कैपिटल. Because in most cases, at an early stage, if you raise external capital, it will come with a lot of restrictions and a lot of equity you will have to dilute. Which means आपका जो proof of concept जब तक नहीं होता, तब तक आपको valuation किसी भी level पे आप किसी venture capitalist के पास जाएंगे, it will be very difficult to convince them to put in any money. So उस stage के ऊपर सबसे अच्छी चीज यही होती है कि आप अपने internal resources, जिसको कहते हैं friends and family, उनसे आप capital raise करने की कोशिश कीजिए. People who are closest to you, who can afford to put some capital behind you, behind your idea and your conviction in that idea. And once you have a proof of concept, you have achieved certain scalability, then at that point you can look at external funding sources. Professor? एक बार आपने एक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया थोड़ा सा फाइनेंसिंग में, तो I think it is either Subhash Ghai's company or somebody told me very interesting idea. I asked such a huge project, 40 crores, 50 crores, and you are a producer, how do you bring the money? He said, rarely we bring more than 5%. I said, what about the 95%? He used a language which is my language called business model. So when I get an idea of a film, say My Name is Khan, that kind of a film, we have an idea and maybe one or two things like Kajal and Shah Rukh Khan I can show. For every business there is one or two things. So what they do, they keep slicing the project into small pieces. And ek karke start selling it off, even before the film is shot. For example, music rights. For example, sell through internet. For example, sell through multiplexes. For example, sell through airlines. Khali ek, they don't sell. The main revenue stream. As a result, the project cost dropped from 45 crore to probably 10 crore. The rest is sold out. So only place left out probably the exhibitors, where we can make money. Some upper limit should be kept open. The idea I'm trying to say, if you have आपके पास business model होगा that includes how do you are slicing each part. My personal experience, I worked with many entrepreneurs. They do it in such a way, they all become partners, non-equity partners. They bring expertise, they bring the channel, and they start as a consortium. And the work gets done, and the moment it crosses a level, I go back to Dinesh. Because you know the story, nobody knows. Everybody knows part of the story. And they're happy, because for them it's one of those extra activity. But Dinesh is an artist, a designer. He's slowly building the blocks, and suddenly he goes for a scale. In the first 5 years, the importance of business model is that important. It's not just business model, it's also slicing the model, get the partner in, who will bring their expertise and money, and you're not spending. But they don't know why they are bringing. Because the designing part is done by people like Sachin, people like everybody else. नहीं, दिनेश अग्रवाल जी, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, क्या वास्तव में ऐसा था
कि जब आपने बिजनेस शुरू किया तो आपको वो विजन था कि आज से 10 साल बाद में कंपनी का ये स्ट्रक्चर होगा, इस फॉर्मेट में होगी, क्या इस तरीके से होता है या फिर बस वो करते गए और चीजें बनती गई? तो एक तो कंप्लीट विजन शायद नहीं होता है, हेजी विजन होता है, बट बिलीफ होता है, उस डायरेक्शन का बिलीफ होता है। तो अगर आप कहें कि 10 साल बाद एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है, ये नहीं पता होता है, लेकिन किस डायरेक्शन में जाने वाला है 10 साल में वो पता होता है। कौन सा सब? आई थिंक थोड़ा सा मैं इन्हीं की बात को थोड़ा आगे ले जाऊंगा। जब हम शुरू करते हैं वो हेजी होता है, क्योंकि आप एक चीज कर रहे हैं और प्रोफेसर साहब ने बोला कि जो आपको जब जिस चीज की जरूरत रहती है तो आप वो चीज इकट्ठी करते हैं। आपको नॉलेज जिस चीज की चाहिए तो आप नॉलेज लेते हैं, लेकिन वो चीज क्या आगे लेके जाएगी ये किसी को भी नहीं पता होता। कि अगर आज मैं इन्वर्टर बिजनेस कर रहा हूँ, कल उसका इन्वर्टर बिजनेस जीरो हो जाए। सो आप और फिर आप जब आप जैसे आप जिस जो आप राह ले लेते हैं उस पर चलना शुरू करते हैं तो आपकी क्लैरिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू हो जाती हैं, या ये दिखना शुरू हो जाता है इस पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू चेंज द ट्रैक। सो इट्स आई मीन ऐसा कोई नहीं होता जो आदमी सोच के चलता है मैं 10 साल बाद इसी इंडस्ट्री में रहूंगा या मैं ये करूंगा। पीपल कीप चेंजिंग एंड एज यू लर्न मोर तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो आपको बताता है अभी ट्रैक फास्ट चेंज करो या अभी स्लो ट्रैक चेंज करो। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस यू कीप चेंजिंग, बट वही है डायरेक्शन कोई लेके चलते हैं और पहुंचते कहीं और है, या डायरेक्शन यही लेके चलते हैं और वहीं पहुंचते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। जी बोला सर। I think I agree to a great deal with what they just said. Businesses, in definition, are always in an evolutionary phase, irrespective of where you started. Even like you rightly pointed out, a company like Google, which was the master of the universe till a year ago, and now it's Facebook, and who knows what's coming next. So there are certain factors that you can control and foresee. There are other things, uncontrollable threats that you cannot foresee, which are typically called disruptors. So इस केस के अंदर एक जो एंटरप्रेन्योर की अपनी कन्विक्शन होती है, एंड लाइक Kumar rightly said, you find the way that as you move on a certain path, you will see more and more opportunities in your particular business, or you will see that the business needs to be fine-tuned to move in a different direction. So again, you always have to, irrespective of what phase you are in, you will always be in a transitionary, evolutionary phase. Whatever you know now has to change in 6 months. यानी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए विजन के साथ साथ, ये ज्यादा जरूरी है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लेंगे आपके ढेरों सवाल जिनके जवाब आप यकीनन जानना चाहते हैं। हमारे साथ ऑडियंस से क्वेश्चन लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलो बिजनेस करो में आज इस मेगा शो में हमारे साथ हमारे 4 टॉप एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेसर रंजन दास है, साथ साथ हमारे साथ है ऑडियंस। और अब हम सवाल लेंगे हमारे आपके ऑडियंस का, जिनके की कई सारे इस वक्त सवाल हैं हमारे तमाम एंटरप्रेन्योर्स से और साथ साथ प्रोफेसर रंजन दास से। हाउ फार इज इट गुड टू फॉलो एथिक्स व्हेन यू डू बिजनेस? I personally feel in the environment that the next generation is coming in terms of entrepreneurship, I think ethics will take you much farther than the traditional practices without getting into detail. So I genuinely feel that ethics and a very transparent way of doing business is tomorrow. Okay, and the next generation, particularly people like yourself, are born in a time when ideas will not be stolen the way you're saying, but you genuinely need to own that idea. So today when a Facebook happens or a Google entrepreneur comes back and says, I'm going to run this enterprise because it's going to be nimble and it's going to be really managed in a very, very transparent manner. 24,000 employees and you want to run it as a entrepreneurial venture. आप कोई भी अगर गलत स्टेप लेंगे तो कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे। एक आप झूठ बोलेंगे, उसको छुपाने के लिए 100 और बोलेंगे। तो आप जब भी एक गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो आप हमेशा ही कहीं ना कहीं मार खाएंगे। जब भी आप बिजनेस एक एथिकली बिजनेस बनाएंगे, आप हमेशा उसमें ज्यादा सक्सेसफुल होंगे और लॉन्ग टर्म बिजनेस होगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह क्या वास्तव में आज एथिक्स फॉलो होते हैं इस देश में? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब आपने अपना वेंचर शुरू किया है
तो किन किन मुश्किलों का आपने सामना किया और कैसे आपका सजेशन क्या होगा अगर मैं अपना न्यू वेंचर शुरू करना चाहता हूँ तो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे सबसे ज्यादा मुझे ध्यान रखना बहुत जरूरी है? किन किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखें? ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस 3 चीजों में डिसाइड कर लें, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज। हर आदमी का अपना अपना प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, बट ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज। बाकी हर चीज आगे नहीं तो पीछे एड्रेस हो जाएगी, बट आपके कस्टमर्स और आपके एम्प्लॉइज ये 2 लोग हैं जो आपका जिंदगी भर साथ निभाएंगे, एंड ऑब्वियसली द शेयर होल्डर्स। तो कुछ लोग कहते हैं कस्टमर फर्स्ट, कुछ लोग कहते हैं एम्प्लॉय फर्स्ट, शेयर होल्डर फर्स्ट शायद अब बहुत कम कंपनियां कहने लग गई हैं। सो या तो कस्टमर फर्स्ट या एम्प्लॉय फर्स्ट। तो कस्टमर और एम्प्लॉय से रिलेटेड आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो आपको काफी दूर तक लेके जाएगी। Is the fact that you can't decide which is first because it's saying that the customer को happy करने के लिए your employees must be happy also, Yes. and vice versa. So the moment the balance is lost, दोनों ही खराब हो जाएगा। शेयर होल्डर का पैसा सब मिल जाएगा। Yes. कस्टमर हैप्पी होगा तो एंड यू आर डिलीवरिंग डे इन डे आउट, वो पैसा तो आ ही जाएगा। नॉट टू वरी, फिक्र मत करना। बट कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों को एक साथ में देखना ही अच्छा होगा। सर कोई ऐसी सिचुएशन जब आपके पास आइडिया था लेकिन आपके पास कोई सपोर्ट नहीं, तो उस सिचुएशन को आपने कैसे मैनेज किया, कैसे हैंडल किया? ऐसे बहुत बार होता है, अभी भी होता है, अभी भी बहुत सारे आइडियाज होते हैं, फिर हमें लगता है कि यार ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आइडिया इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिर रात को सोना मुश्किल हो जाता है। तो फिर ऐसे वाले आइडियाज के साथ तो फिर हम मतलब समहाउ यू मैनेज। अभी जैसे रोल मेरा चेंज होता जा रहा है, जैसे अभी रोल है जिसमें मुझे लोगों को कन्विंस करना होता है कि मेरा आइडिया है, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट को कन्विंस करना होता है कि ये आइडिया चलेगा। पहले कुछ और था, पहले मुझे कन्विंस करना था तो शायद कस्टमर को कन्विंस करना था। जैसे जैसे चेंज होता है हमेशा ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, आइडियाज बढ़ते जाते हैं और कन्विक्शन का भी जो प्रॉब्लम है बढ़ता जाता है। सो एवरी टाइम यू लर्न एंड देन यू नो एड ऑन your knowledge in it, but it is always a challenging thing. If you want to start a business in 6 months, because of the government regulation and rules, it get delayed, the process get delayed. Seeing the market scenario, if you start the business 6 months, the idea what we have, which will be perfect for today's market, but due to like the government regulation, like it get delayed, and in between, lots of the time people lose hope, and so how could we ignore it? जहाँ तक डिले होने की बात है तो काम शुरू कर दें, कोई आफत नहीं आ जाएगी, फांसी नहीं हो जाएगी। थोड़े दिन बाद भी अगर आपको अप्रूवल्स मिल जाएंगी, हो सकता है कुछ पेनाल्टी लग जाए, वो झेल लीजिएगा। बट अगर आपको कन्विक्शन है आइडिया में लेकिन आपको क्लियरेंस मिलने में दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ ना कुछ तरीका ऐसा निकाल लेंगे एंटरप्रेन्योर होकर के कि आप उसके बिजनेस प्लान के कुछ बिट्स एंड पीसेज आप शुरू कर चुके होंगे, जो सिर्फ एक फाइनल बिट्स एंड पीस है। वो बस जिस दिन प्लान आएगा उस दिन चालू कर देंगे, जिस दिन अप्रूवल आएगी उस दिन चालू।